Hello everyone. So today we are going to see ICSE class 10th chemistry, a new chapter, okay, and its experiment basically. So that is chapter 10, nitric acid, right? So today we're going to see nitric acid as well as its experiment. Now, which experiment does this nitric acid contain? Okay, so yeah, we're going to see nitric acid which whose molecular formula is HNO3, okay, whose molecular formula is HNO3, as well as we're going to see about the process of manufacture of ammonia in industry, and the name of that process is Ostwald process. Okay, we're going to see um, manufacture of ammonia in a large scale in an industry. Okay, if we have to prepare this ammonia in an industry, so how do we form it? Okay, how do we produce it? So in order to produce ammonia, not ammonia, sorry, nitric acid, in order to produce nitric acid in a large amount, in a huge amount, so we have to do a process known as Ostwald process. Okay, this is very very important. Ostwald process is very one of the most important process. Okay, this can come okay, this can come. And one more thing which is very important regarding nitric acid, that regarding Ostwald process, that is uh, in this time, okay, in this time you are not having the diagram, okay, diagram or the structure of Ostwald process. Okay, just you need to remember the reactions of it. Okay, reactions, you have to romanticize, you have to remember the reactions just. Okay, so without wasting no more time, let's discuss about nitric acid. And as we all know that the nitric acid is also known as aqua fortis. Do you know this thing or not, that nitric acid is also known as aqua fortis? Now, what is the meaning of aqua fortis? The meaning of aqua fortis is strong water. Okay, it its mean is strong water. The meaning of aqua fortis is strong water. Now, why do we call this? Okay, why do we call aqua fortis? Okay, why nitric acid is an aqua fortis? Is it so because it react with nearly all metals and convert them into nitrates? Okay, ये सारे metals के साथ रिएक्शन करके नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन कर देता है, इसलिए हम इसे स्ट्रॉन्ग वाटर कहते हैं. इट इज़ अ किंग, मतलब किंग नहीं है, बट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग वाटर, इट इज़ एक्वा फॉर्टिस. ओके, तो ये चीज़ याद रखना दैट इट इज़ एक्वा फॉर्टिस. Okay, nitric acid is aqua fortis because it react nearly all the metals and form its carbonates, its nitrates. Okay, so remember this thing. Now let's learn something new, कि जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है नाइट्रिक एसिड का वो हमने डिस्कस कर लिया, HNO3 होता है ना. और जो इसका आप कह सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसकी नॉलेज दे देता हूँ, फिर हम बढ़ेंगे अपने ऑस्टवॉल्ड प्रोसेस पे. ओके, पहले हम थोड़ी सी इसकी नॉलेज देख लेते हैं. सी, फ्री स्टेट में कहाँ मिलता है? फ्री स्टेट में ये मिलता है, एक मिनट, फ्री स्टेट में मिलता कहाँ है हमें नाइट्रिक एसिड? फ्री स्टेट में कहाँ मिलता है? फ्री स्टेट में गाइस ये मिलता है हमारा इन अ फॉर्म ऑफ एसिड रेन. ओके, एसिड रेन, इन अ फॉर्म ऑफ एसिड रेन. फ्री स्टेट में आपको ये मिलेगा एसिड रेन्स, रेन की फॉर्म में. ओके, जब एसिड रेन होती है ना, तब ये मिलता है हमें नाइट्रिक एसिड. ओके, और एक चीज़ और ये कंबाइंड स्टेट में कहाँ मिलता है?
कॉम्बाइंड स्टेट में हमें मिलता है, कॉम्बाइंड स्टेट में गाइस ये हमें मिलता है, जस्ट वेट, मेटालिक नाइट्रेट की फॉर्म में। ओके, मेटालिक नाइट्रेट्स की फॉर्म में ये हमें मिलता है। ओके, मेटालिक नाइट्रेट्स की फॉर्म में हो गया, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट हो गया। ओके, या आप कह सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। इनकी फॉर्म्स में हमें ये जो है ये नाइट्रिक एसिड होता है, ये मिलता है। ओके, इतनी बात समझ आई। आई होप दिस नॉलेज इज clear to you. Okay, next what we are going to see, okay, what we are going to see, obviously the Ostwald process. Okay, manufacture of ammonia of nitric acid by Ostwald process, किसके थ्रू? Ostwald process के थ्रू, Ostwald, okay, by Ostwald process, and only reactions are involved in the syllabus. Syllabus में सिर्फ आपके reactions हैं. Okay, just you are having reactions in the syllabus. Okay, make sure mark this point. इस बार आपके 2023 के सिलेबस में आपने सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस लिखनी है. यू डू नॉट नीड टू लर्न द स्ट्रक्चर. ओके, इस बार स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा आपको, जस्ट रिएक्शन. रिएक्शंस आपने करनी है एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो. सो let's see and let's move to the first step of our nitric of our Ostwald process, which is कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप में हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं अमोनिया का. ओके, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कि जो अमोनिया है उसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं. ओके, उसे किस में? कैटालिटिक चैम्बर में पास करा के, कैटालिटिक चैम्बर में पास करा के, जिसमें क्या होता है, कौन सा कैटलिस्ट होता है? उसमें होता है आपका प्लैटिनम. ओके, उसमें क्या होता है आपका, जस्ट वेट, उसमें आपका होता है प्लैटिनम. ओके, याद रखना कौन सा कैटलिस्ट होता है, प्लैटिनम होता है उसमें. ओके, और कितने टेम्परेचर पे होता है? 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रहता है. ओके, सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, क्या होता है हमारा? प्लैटिनम होता है कैटलिस्ट, और 800 डिग्री सेल्सियस के हमारे ये जो टेम्परेचर होता है, इस पर जो रिएक्शन होती है वो प्रोसीड होती है. राइट, अब क्या करना है अपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे हम? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हम करेंगे ये NH3 अमोनिया और ऑक्सीजन को मिक्स करके. किस में? प्लैटिनम और 800 डिग्री सेल्सियस पे प्लैटिनम से पास करा के, जब हम अमोनिया और ऑक्सीजन को, रेशियो क्या है? 4:5 में. ओके, कितने मोल्स में? 4 वॉल्यूम एंड 5 वॉल्यूम में ऑक्सीजन. 4 वॉल्यूम में नाइट्रिक एसिड अमोनिया रहता है, सॉरी नॉट नाइट्रिक एसिड, अमोनिया रहता है 4 वॉल्यूम में, और 5 वॉल्यूम में ऑक्सीजन रहता है. दोनों को जब हम किस में? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक चेम्बर में जब हम पास कराते हैं, जिसमें क्या है? प्लैटिनम कैटलिस्ट है, और कितना टेम्परेचर है? 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. जब हम इस चेम्बर में पास कराते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है. ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है. क्या फॉर्म होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप समझ आए. हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? ऑक्सीडेशन कराना है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में. किसका? अमोनिया का. अमोनिया का हमें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराना है. राइट, अब वो कैसे होगा? अमोनिया को और वाटर को, सॉरी अमोनिया को और ऑक्सीजन को 4 वॉल्यूम 5 में प्लैटिनम और 800 डिग्री सेल्सियस
कि कंडीशन पे जब हम पास कराएंगे गुजारेंगे तो हमारा क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑब्वियसली वाटर बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप समझ आए। आपने कुछ नहीं याद रखना है, आपने सिर्फ ये रिएक्शन को याद रखना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओनली रिएक्शंस यू हैव टू रिमेंबर, सिर्फ रिएक्शंस को याद करना है। ओके, 4NH3, जस्ट वेट, 4NH3 plus 5O2 in presence of platinum and 800 degrees Celsius gives you 4NO plus 6H2O. Okay, so I hope first step is clear to you. ओके, समझ आ गया फर्स्ट स्टेप क्या था। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया का, किस में ना, उसमें अमोनिया और ऑक्सीजन को जब हम प्लैटिनम और 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे पास कराते हैं, जब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं उसका, तो हमें क्या फॉर्म होता है, क्या मिलता है, हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलती है और हमें वाटर मिल जाता है। ओके, आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू यू, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। Let's move to the next step of our, okay, so okay, और एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं भूल गया, सॉरी, एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हीट भी यहाँ पे इवॉल्व होती है, बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक, सॉरी, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें हीट भी इवॉल्व होती है, सॉरी। ओके, 4NH3 plus 5O2 in presence of platinum and 800 degrees Celsius gives you 4NO plus 6H2O plus heat. ओके, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ऑब्वियसली कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट हीट, उसमें हीट होना नेसेसरी है। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव हीट इन कैटालिटिक चेम्बर। ओके, हमने अमोनिया वाले में भी देखा है, हेबल्स प्रोसेस में, उसमें कौन सा कैटलिस्ट रहता है, आयरन के पीसेस रहते हैं, मॉलिबीडियम रहता है। ओके, ऐसे ही इसमें क्या रहता है, प्लैटिनम रहता है, राइट। तो ये याद रखना कि यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसे में इसे हीट देने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक बार हीट किया फिर पूरी रिएक्शन में से हीट देने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें हीट जिसमें इवॉल्व होती है, और एक बार हीट इवॉल्व हो जाए, एक बार हीट देने पे फिर पूरी रिएक्शन में कहीं हीट देने की ज़रूरत नहीं है, ये होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। इट्स इट ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हम ऑक्सीडेशन कराएंगे नाइट्रिक ऑक्साइड का। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, NO का। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड का हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन मतलब मिक्स करके हम क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ओके, मतलब ये 2NO plus O2 gives 2NO2, वेरी इजी, ये तो बहुत ईजी है ना। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू 2NO, ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और कितना यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा, यहाँ पे टेम्परेचर आपका रहेगा 50, ओके, 50 डिग्री, यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर रहेगा। ओके, सो इस चैम्बर में क्या नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइन करेगी ऑक्सीजन से और क्या बना देगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, ये हमारी क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ और बना देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कितने, 50 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो फर्स्ट स्टेप क्या था, जल्दी से याद कीजिए, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। क्या करा था हमने, हमने NH3 लिया था, मीन्स अमोनिया लिया था, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस ऑक्सीजन लिया था, दोनों को मिक्स करके प्लैटिनम और 800 डिग्री सेल्सियस पे हमने नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया था, एज वेल एज उसमें वाटर भी निकला था प्लस हीट भी निकली थी, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। ये था हमारा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, हमने कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या था, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करवाया हमने
क्या 50 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, और हमने क्या बनाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाई। ओके, ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2। ओके, 2NO2 2NO plus O2 in presence of 50 डिग्री सेल्सियस gives you 2NO2। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको मिल जाती है। आई होप सेकेंड स्टेप इज क्लियर टू यू। बस इसमें यही है और कुछ नहीं है, आपने बस ऑक्सीडेशन कराना है नाइट्रिक ऑक्साइड का। तो हमने नाइट्रिक ऑक्साइड ली। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड ली, ऑक्सीजन लिया, 50 डिग्री सेल्सियस पे हमने हीट किया जब इसे, तो क्या मिला हमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिली। वेरी इजी, ये तो बहुत बच्चों वाली रिएक्शन है, राइट। ये आपने पढ़ी भी होगी छोटे क्लासेस में। सो आई होप दोनों स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों क्लियर हों आपको। लेट्स मूव टू द वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट दिस स्टेप, थर्ड स्टेप, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन वाटर। ओके, जब हम वाटर में और ऑक्सीजन दोनों को मिक्स करके हम एब्जॉर्बिंग टावर में डालेंगे। ओके, तो हमारा क्या बन जाएगा, जो हमें चाहिए था, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा हमारा 4NO3। ओके, तो NO 2NO प्लस, जस्ट वेट, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी, ओके, वो मिलकर एयर से, ओके, एयर से मिलकर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी वो एयर से मिलकर क्या करेगी, जो एब्जॉर्प्शन टावर होती है उसमें जाएगी। ओके, एब्जॉर्प्शन टावर होता है, उसमें जाएगी। फिर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी और ऑक्सीजन होगी, कहाँ, एयर में जो प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वो रिएक्ट करेगी कहाँ, वाटर से, टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। दोनों किससे, वाटर से रिएक्ट करेंगी और क्या बना देंगी, नाइट्रिक एसिड बना देंगी जो हमें चाहिए था। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जस्ट वेट, आई एम टेलिंग यू, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ये जो वाटर है, ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ओके, वाटर और ऑक्सीजन दोनों ये मिक्स करेंगे और क्या बना देंगे, ये बना देंगे हमारा नाइट्रिक एसिड को, 4NO3 को। और यही हमें चाहिए था, है ना। क्या हमें चाहिए था, नाइट्रिक एसिड ही तो हमें चाहिए था, और जो कि हमें मिल चुका है। ओके, जो नाइट्रिक एसिड है वो हमें मिल चुका है। नाउ ये जो एसिड हमें मतलब मिला है, ये वाला जो एसिड ये होता है इन अ फॉर्म ऑफ, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, जो कि कहाँ होता है, लैबोरेटरी में होता है ना, केमिकल लैब्स में होता है। इसी का यूज़ करते हैं। कितने, 68% होता है, 68% एक बार में मिलता है। जैसे कि हमें अमोनिया मिलती थी, राइट, ऐसे ही हमें एक बार में 68% हमें मिल जाता है हमारा दिस HNO3 नाइट्रिक एसिड, राइट। और ये क्या होता है, इसी से हम प्रूव हो जाता है, मतलब इसी से हमारा फॉर्म हो जाता है जो हमें चाहिए था, दैट इज नाइट्रिक एसिड। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट मेथड ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, क्योंकि इसमें आपने ना ही कोई स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, मतलब डायग्राम नहीं आएगा इस बार आपको रिएक्शन सिर्फ याद रखनी है। और रिएक्शन सब बहुत ईजी रिएक्शंस है। कितनी ईजी रिएक्शंस हैं, जस्ट वेट। ओके, तीनों रिएक्शंस, तीनों स्टेप आपको अभी याद हो गए होंगे। आई एम प्रेटी श्योर, आई एम डैम श्योर कि आपको याद हो गए होंगे तीनों स्टेप। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराना है। ओके, अमोनिया को लेना है, ऑक्सीजन को लेना है, प्लैटिनम और 800 डिग्री सेल्सियस पे हमने दोनों को गर्म कर देना है, और क्या फॉर्म हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके, और वाटर दोनों फॉर्म हो जाएंगे, प्लस हीट भी इवॉल्व होगी, राइट, प्लस हीट भी इवॉल्व होगी, क्योंकि ये क्या है, बिकॉज इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, सीधी सी बात है। सेकेंड स्टेप पे आते हैं जल्दी से। फर्स्ट स्टेप आई होप आपको समझ आ गया होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का हम ऑक्सीडेशन करेंगे कैसे, जब वो कंबाइन करेगी ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करेगी, ऑब्वियसली देखो, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब समझते हैं क्या होता है, लेट मी टेल यू। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है जो
नेसेंट होती है एटॉमिक फॉर्म में जो ऑक्सीजन होती है, उससे हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, उसे हम क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि एटॉमिक फॉर्म में होती है। कौन सी फॉर्म में होती है, एटॉमिक। जब ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ, मतलब एक और नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगी, जब ये रिएक्ट करेंगी दोनों, क्या बनाएंगी, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना देंगी, जो कि क्या है, ऑक्सीजन है, इजंट इट। ये जो ऑक्सीजन है ये होती है खतरनाक। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है, जो एटॉमिक स्टेट में ऑक्सीजन होती है, ये होती है बहुत खतरनाक, वेरी फैटल फॉर योर सेल्फ, फॉर यू, फॉर मी, एवरीवन। पर ये जो होती है ऑक्सीजन, ये होती है बहुत अच्छी, जो कि हमें क्या देती है, लाइफ देती है, राइट। तो ऑक्सीजन का भी एक बहुत ही खतरनाक रूप है, राइट। इसी तरीके से गाइस, जब हम NO को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करा दें तो क्या बनता है, NO2, राइट, 2NO2, इजंट इट, ये भी 2NO2, 2O2, राइट। तो ये जो मिला हमें, ये क्या मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यही तो स्टेप यूज़ किया गया है सेकंड स्टेप में, और क्या है, वेरी इजी, राइट। समझ आ गया होगा स्टेप। थर्ड स्टेप पे चलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ली, वाटर में मिक्स किया, ऑक्सीजन को मिक्स किया, और क्या बना दिया हमारा, जो हमें चाहिए था, HNO3 का फॉर्मेशन कर दिया, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया, राइट। सो यही तीन स्टेप थे हमारे, जो कि बहुत ही ईजी थे, राइट। ये ही था हमारा पूरा सिस्टम, और इसी के साथ हमारा फिनिश हो जाता है आज का टॉपिक, जो कि है नाइट्रिक एसिड। बिल्कुल इजी टॉपिक था, ओके। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं आती हैं तो मैं एक दो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपको बता देता हूँ फिर भी। और केमिकल्स तो एज यूजुअल आपने ही याद करनी है, ओके। जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ये जो सॉरी नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, इसका कलर क्या होता है, नाइट्रिक एसिड का कलर क्या होता है, इसका कलर होता है गाइस कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, इट इज़ अ कलरलेस एसिड, ओके। कलरलेस एसिड होता है 98%, जब ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ओके। पर ये जो होता है नाइट्रिक एसिड, जो नाइट्रिक एसिड है, ये जो हमारा लैब में होता है ना, लैब में जो नाइट्रिक एसिड होता है वो कैसा होता है, सी, ये जो एसिड है, ये वाला, यही तो नाइट्रिक एसिड है, दिस इज योर नाइट्रिक एसिड HNO3। बट अभी मैंने कहा कि ये कलरलेस होता है ना, पर ये तो येलो है। ये येलो क्यों होता है, ये येलो होता है गाइस, इसका कलर जो येलो होता है, पेल कलर, इसका कहाँ से आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से, ड्यू टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, ड्यू टू NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से इसका येलो कलर आ जाता है, ओके। इसकी ऑर्डर कैसी होती है, ऑब्वियसली सिंस इट इज़ एन एसिड, सो इसकी ऑर्डर भी कैसी होगी, खतरनाक होगी, राइट। तो इसकी एसिड क्या, इसकी ऑर्डर कैसी होती है, इसका ऑर्डर जो होता है सफोकेटिंग होता है, सफोकेटिंग स्मेल होती है इसकी, ओके। टेस्ट ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ एन एसिड, तो कैसा टेस्ट होगा, टेल मी, कैसा टेस्ट होगा, साउर, राइट। सो साउर टेस्ट रहता है इसका, एज वेल एज इसका जो डेंसिटी वगैरह होती है वो 1.53 समथिंग लाइक दिस होती है, ओके। सो यहीं तक आपने रखना है, ओके। इतना पूछा नहीं जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी, बट यू शुड रिमेंबर, ओके। सो विद दिस केमिकल प्रॉपर्टीज आपने खुद याद करनी है, ओके। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आर टुडेज लेक्चर। एक चीज़ और आपने याद रखनी है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हम और किस नाम से जानते हैं, एक्वा फॉर्टिस के नाम से जानते हैं, राइट। जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वाटर। क्यों स्ट्रॉन्ग वाटर होता है, क्योंकि ये हर केमिकल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, ओके। मैक्सिमम, हर नहीं, मैक्सिमम के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए अब जो चीज़ हर सबसे पंगा ले लेती है, सबको दबा देती है, सबको सप्रेस कर देती है, वो तो यार स्ट्रॉन्ग हुआ ही ना। तो इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ यू हैव टू टेल मी, दिस इज माई क्वेश्चन टू यू, which acid is known as the king of acid, which acid is known as the
किंग ऑफ एसिड, कौन सा एसिड जाना जाता है किंग ऑफ एसिड? सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर, दैट्स इट, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, बाय।